Hello everyone. Today we will go further in our taxation. Today we will discuss about the definition gross total income. Gross total income is the total taxable income under all the 5 heads before making deduction under section 80C to 80U. See, gross total income. We have already understood about 5 head of income on the very first lecture of taxation, that mainly we calculate the tax on the incomes of 5 heads. The 5 heads are salary, income from house property, income from business and profession, capital gain, and income from other sources. These are the 5 heads, and we will do the total of these 5 heads, and that total will be treated as gross total income. We will not include any deduction under section 80C to 80U. Okay, 80C to 80U we will deduct later on, and we will deduct it from the gross total income. As per section 14, income of a person is computed under various heads, and before aggregating these incomes, the losses under various heads can be set off against the income. It means, see, these 5 heads of income will not generate only gains. Some heads can generate the losses also. So before we aggregate these incomes, we total this income, we grand total this income, we have to take care about losses also. We have to deduct or set off these losses against our income. Unobserved depreciation, carried forward losses, etc. are deducted. Even we deduct unobserved depreciation, carried forward losses, means some losses cannot be set off in just 1 year. It has to be carried over again more than 1 or 2 years. So we will include this carried forward losses also, and this will deduct these losses or unobserved depreciation, and then we'll get the gross total income. The resultant figure finally obtained is known as gross total income. बेसिकली इस डेफिनेशन में हमको सिर्फ इतना समझना है कि टैक्सेशन में जब हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के ऊपर से ही टैक्स कैलकुलेट होता है, राइट? तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के अंदर हम मेजर 5 हेड्स ऑफ इनकम ध्यान में लेते हैं. वो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, उसका जब हम टोटल करेंगे तो वो टोटल जो हमें मिलेगा वो होगा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम. हम इसके अंदर ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर 80C टू 80U का जो डिडक्शन होता है, ये सेक्शंस ऐसी है कि जिसके अंडर में हमको गवर्नमेंट कुछ चीजों में डिडक्शन देती है. मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स है जो हमको टैक्स में से माइनस मिलते हैं. मतलब हम हमारी इनकम में से उसको माइनस करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा टैक्स क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. तो जो ये 5 हेड ऑफ इनकम का जो टोटल बनता है उसको ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं. उसमें हम कोई भी डिडक्शन ध्यान में नहीं लेंगे. दूसरी बात कि जो कैरिड फॉरवर्ड मतलब जो लॉसेस होते हैं, सिर्फ हमें जो प्रॉफिट होता है, जरूरी नहीं है कि हर एक हेड में हमें सिर्फ प्रॉफिट ही हो. कभी कभी कुछ साल में हमें लॉस भी हो जाते हैं कुछ हेड में. तो हमें वो जो लॉसेस है उसको भी हमारी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ करना पड़ता है. सेट ऑफ मीन्स हम बोलते हैं ना कि उसको माइनस कर देना होता है हमारी इनकम में से. तो वो सेट ऑफ करने के बाद हमें जो टोटल इनकम मिलती है उसको हम ग्रॉस टोटल इनकम कहेंगे. फाइनली जो टोटल मिलता है सारा कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस होता है. मतलब कुछ लॉसेस इतने बड़े होते हैं कि 1 साल की इनकम में मतलब पूरे सेट ऑफ नहीं हो सकते हैं. तो क्या करते हैं हम, जो बाकी का लॉस है वो दूसरे साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो फिर दूसरे साल की इनकम में से भी वो माइनस हो जाते हैं. ऐसे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है लॉसेस को, और उसके बाद हमें जो ग्रॉस टोटल मिलता है बिफोर डिडक्शन, हमारे कोई भी डिडक्शन करने से पहले,
डिडक्शन हम इसमें से सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन और कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस, उसके अलावा ग्रॉस टोटल इनकम में कुछ डिडक्ट नहीं होता। तो जो टोटल मिलता है उसको हम बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है टोटल इनकम। उसको नेट टोटल इनकम भी बोल सकते हैं या टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं। व्हाई, लेट्स सी। Total income is the income of the assessee from all sources on which he has to pay income tax. Means our tax calculation will be depended or based on this total income. Determine total income tax payable by him on total taxable income at the prescribed rates applicable to the relevant previous year. Means we will calculate the income relevant previous year, means in which year we are doing the assessment process. We will look into the income of the previous year. That thing we have already discussed about previous year and assessment year. We have seen the difference of previous year and assessment year. So uh, in previous year the rate of taxation is there. We will calculate the tax according to that rate. Means in which year the income is taking in which year the income is calculating, the tax rate will be also of the same year. Relief rebate as per provisions of section 86 and 89 is deducted. Means if there is any relief rebate, we will deduct this rebate. If the total tax payable is more than the advance tax and tax deducted at source, the balance is the net tax payable by an assessee. If the assessee has paid the advance tax and or TDS, tax deducted at source means TDS. So if assessee has already paid the advance tax or TDS and that amount is more than the more than the tax payable, sorry, if that amount is less than the total tax payable, means if total tax payable is more and you have paid less, then the balance amount is net tax payable by an assessee. Interest under section 234A and 234B, 234C will be added if the total tax payable is less than the advance tax and TDS. The excess will be refunded to an assessee. अब हम समझते हैं कि ये टोटल इनकम जो है उसको हम नेट टोटल इनकम भी बोल सकते हैं, उसको हम टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं। क्यों टैक्सेबल इनकम बोल सकते हैं? बिकॉज टोटल इनकम इज द इनकम ऑफ द एसएससी फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑन विच ही हैज टू पे इनकम टैक्स। ये जो हमारा नेट टोटल इनकम आएगा वही हमारा जो वो अमाउंट है जिसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। दूसरी बात, दूसरी लाइन में यहाँ पे ये लिखा है कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है, देखो असेसमेंट ईयर में हम टैक्स का असेसमेंट करते हैं, राइट, कि कितना टैक्स पेएबल होता है। जिस असेसमेंट ईयर में हम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं उस असेसमेंट ईयर में हम इनकम कौन से ईयर की लेते हैं? प्रीवियस ईयर की लेते हैं। तो यहाँ पे हमको ये बताया गया है कि जो हम प्रीवियस ईयर की इनकम हम ध्यान में लेते हैं टैक्स कैलकुलेशन के लिए, तो जो टैक्स रेट होगा वो भी वही ध्यान में लिया जाएगा जो प्रीवियस ईयर में लागू हो रहा है। अगर मान लो कि प्रीवियस ईयर में टैक्स रेट है 20% और हमारा असेसमेंट ईयर में अगर गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स रेट में चेंजेस किए हैं, तो हम जिस ईयर की इनकम ध्यान में ले रहे हैं हमको टैक्स रेट भी उसी ईयर का ध्यान में लेना होगा। सिंपल है, क्लियर? दूसरा, सेक्शन 86 और 89 के अंडर में जो रिलीफ रिबेट आता है, कुछ रिलीफ देती है गवर्नमेंट, वो रिलीफ रिबेट हमको ये नेट टोटल इनकम में से डिडक्ट होता है, मतलब हम माइनस कर सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट दी हुई है, वो ये है कि अगर मान लो किसी एसएससी ने, हमारे ध्यान में एसएससी क्लियर है कि जो टैक्स पेयर है उसको हम एसएससी बोलते हैं, राइट। तो जो एसएससी है वो अगर एडवांस टैक्स पे कर रहा है या तो टीडीएस पे कर चुका है गवर्नमेंट को, तो अगर उसका जो टैक्स पेएबल होता है वो एडवांस टैक्स और टीडीएस से ज्यादा है, मतलब उसने जो एडवांस टैक्स या टीडीएस भरा है
उसका जो टैक्स भरने का आया वो अमाउंट, वो जो उसने पे किया हुआ है ऑलरेडी उससे ज्यादा है, तो क्या होगा, जो बाकी का डिफरेंस बच रहा है वो डिफरेंस उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। इवन वो जो बचा हुआ जो अमाउंट है, डिफरेंस है, उस पे 234A B एंड C के अंडर में जो भी सेक्शन लागू होती है उस सेक्शन के अंडर में इंटरेस्ट भी उसका ऐड किया जाएगा, मतलब उसको इंटरेस्ट के साथ वो अमाउंट गवर्नमेंट को पे करनी है। लेकिन अगर वो जो नेट टैक्स पेएबल है, वो टैक्स पेएबल वाला जो अमाउंट है वो उसके एडवांस टैक्स या TDS से कम है, तो बाकी जो बचा हुआ जो पैसा है वो एसएससी को रिफंड किया जाएगा, वो गवर्नमेंट उसको रिफंड कर देगी। क्लियर? तो ये है हमारी टोटल इनकम। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं कैजुअल इनकम। Casual income is that income which is unexpected and unforeseen. Means casual income is such an income that we are not expecting that this income will come, and even we didn't have planned for this income. इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी इनकम जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, अनफोर्सिन, मतलब हमने कभी दूर, मतलब इतने 2 महीने 4 महीने बाद मिलेगी, फ्यूचर में मिलने वाली है, ऐसा भी हमारा कोई अंदाजा नहीं था, उसको बोलते हैं अनफोर्सिन। एंड अनएक्सपेक्टेड मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वो अनएक्सपेक्टेड या अनफोर्सिन जो इनकम होती है उसको बोलते हैं कैजुअल इनकम। इट इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। ये ऐसी इनकम है जो रेगुलर सोर्स जो हमारा है इनकम का, वहां से हमें नहीं मिल रही है। सीधी सी बात है, अगर वो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम में से मिली होगी हमको, तो वो हमारी टोटल इनकम में आएगी या ग्रॉस टोटल इनकम में जाएगी। वो हमें कैजुअल इनकम हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि कैजुअल इनकम तो क्या है, अनएक्सपेक्टेड है। जबकि अगर रेगुलर सोर्स में तो मिल रही है, मतलब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या हम कोई जॉब कर रहे हैं, हम कोई प्रोफेशन में है, तो वो तो हमें पता है कि हमें यहाँ से मिलने वाली है, राइट? तो कैजुअल इनकम में से तो हमने पहले ही बोल दिया कि भाई अनएक्सपेक्टेड है या अनफोर्सिन है, हमने सोचा नहीं था और हमें मिली हुई है, तो रेगुलर सोर्स में से वो मिली हुई नहीं होनी चाहिए। According to the Act, any receipts which are of casual and non-recurring nature are casual incomes. Casual means यूं ही मिल जाती है, या नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब क्या हुआ कि वापस वो मिलने वाली है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कैजुअल है एंड नॉन रिकरिंग है, वैसे नेचर वाली जो इनकम है उसको बोलते हैं कैजुअल इनकम। After assessment year 1972 and 73, casual incomes are taxable. Means before 1972-1973, the casual incomes are tax free. Casual incomes were tax free. But after assessment year 1972 and 73, all casual income are taxable. Means we have to pay the tax on this income. Here are some examples like gross winning from lotteries, crossword puzzles, race including horse races, card games, any form of gambling or betting shall be chargeable to income tax under section 115BB at a flat rate of 30% without claiming any allowance or expenditure. These are some examples like lottery, crossword puzzle, any games winning, horse races, card games, any gambling or betting. These all are called casual incomes. The main thing is that the tax rate on these incomes is fixed. We have to pay flat 30% tax to the government on these incomes. The second important thing is that we cannot deduct any expenses or allowances to get this income from this. इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो लॉटरी हमें कोई लॉटरी लग जाती है, कोई गेम में हम पैसा जीत जाते हैं, हम कोई सट्टा खेलते हैं या कोई हॉर्स रेसेस में पैसे लगाते हैं या शर्त में पैसे जीतते हैं, इस तरीके के जो हमें इनकम मिलती है उसको हम कैजुअल इनकम में ट्रीट करते हैं, राइट? यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इस जो हमारी ये इस तरह की जो हमारी कैजुअल इनकम है
उस इनकम पे हमें फ्लैट मतलब सीधा 30% गवर्नमेंट को दे देना है। मतलब एज एन एग्जाम्पल, अगर आपको 1 लाख की लॉटरी लगी है तो उस 1 लाख में से 30% मतलब 30,000 रुपए हमें सीधा गवर्नमेंट को पे करने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इस कैजुअल इनकम के अंदर जो हम टैक्स पेमेंट करते हैं तो वो जो इनकम हम ध्यान में देते हैं वो टोटल इनकम ध्यान में देते हैं। उसमें कोई भी अलाउंसेस या खर्चा मतलब किसी भी तरह का खर्चा जो हमने किया है इस तरीके की इनकम को पाने के लिए, जैसे अगर मैं बोलूं कि चलो लॉटरी का हमें लॉटरी लगा है तो लॉटरी का टिकट का हमने 500 या 1000 रुपए खर्च किया था, तो वो हमारी कैजुअल इनकम में से माइनस नहीं होगा। गवर्नमेंट को तो हमें जितनी इनकम मिली है उसके ऊपर सीधा 30% दे देना है। हमें उसके अंदर कोई एक्सपेंसेस या अलाउंसेस माइनस करने की अथॉरिटी नहीं है, स्पेशली ये कैजुअल इनकम में बिल्कुल भी नहीं है। ओके, the next para says it must be noted that only receipts which are not like to recur will be treated as casual income। यहाँ हमें ये ध्यान देना है, ये लाइन हमें ये बोलती है कि ऐसी चीज जो वापस मिलने की या जल्दी से जल्दी मतलब थोड़े थोड़े टाइम में वापस मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, उसी को हम कैजुअल इनकम में ट्रीट करेंगे, उसी को हम कैजुअल इनकम बोलेंगे। उसमें यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी लिया है। एग्जाम्पल के तौर पे birthday gift will be treated as casual income, but the amount of tip received by a driver from a passenger is not a casual income। मीन्स अगर हमको कोई बर्थडे गिफ्ट मिलता है तो वो हमारा कैजुअल इनकम है, राइट। बट अगर एक ड्राइवर है उसको उसका पैसेंजर टिप देता है तो वो उसकी कैजुअल इनकम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसके बिजनेस का, इसकी ड्यूटी का पार्ट है और उसको एक्स्ट्रा पैसा मिला है। चाहे वो टैक्सी ड्राइवर को हम टिप दे या होटल स्टाफ को टिप दे या वेटर को टिप दे, तो उन लोगों के लिए ये उनके काम में से मिली हुई टिप है, तो वो कैजुअल इनकम नहीं कही जाएगी। बट बर्थडे गिफ्ट है या हम एनिवर्सरी गिफ्ट देते हैं या हम कोई भी इनॉग्रेशन में गिफ्ट देते हैं या हमें हमें मिलती है वो गिफ्ट, तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है? कैजुअल इनकम। ओके, सो आई होप you have cleared your idea about gross total income and casual income। हम आज के वीडियो में 4 तरह की इनकम को डिस्कस करने वाले हैं। 3 इनकम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रॉस टोटल इनकम जो हमारा इनकम्स का पूरा टोटल है बिफोर डिडक्शन, कोई भी डिडक्शन के पहले का। टोटल इनकम क्या है? हमारा नेट टैक्सेबल इनकम है जो डिडक्शन के बाद की इनकम है, जिसके ऊपर हमारा सीधा कैलकुलेशन होता है टैक्स का। और कैजुअल इनकम क्या है? ऐसी इनकम जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था, वो अनएक्सपेक्टेड है, अनफोर्सिन है, कोई भी अचानक से मिली हुई इनकम है, उसको उसके ऊपर हमारा सीधा फ्लैट 30% टैक्स पे करना पड़ेगा उसके ऊपर। और जो हमें कैजुअली यूं ही मिल जाती है उसको हम कैजुअल इनकम बोल सकते हैं। ओके, एंड द लास्ट इनकम फॉर टुडेज वीडियो इज एग्रीकल्चर इनकम। अब एग्रीकल्चर इनकम क्या है? देखो, हमारा जो कंट्री है, वी आर लिविंग इन इंडिया एंड अवर इंडिया इज बेस्ड on agriculture। We can say that more than 70% people are dependent on the agriculture, right? And one more thing we have to take care this, that in our country agriculture income is tax free। अगर प्योर पूरा एग्रीकल्चर इनकम है तो वो हमारी कंट्री में टैक्स फ्री है, उसके ऊपर हमें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस ये भी है कि पूरी एग्रीकल्चर है या नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, ऐसा भी एक पार्टीशन है। बट राइट नाउ वी विल सी द एग्रीकल्चर इनकम। सो मेनली वी हैव टू सी और वी हैव टू टेक केयर दैट 3 parts of agriculture income। Any income which is received by rent or revenue, number 1, income derived from such land, number 2, and income derived from building or farmhouse, number 3। Now we will see further that each point, we will see the description of each point। Okay, so first point is rent or revenue। It means it must be derived from land, means any rent or revenue must be derived from land। Second, the land must be situated in India।
Third, the land must be used for agriculture. It means simply any rent or revenue we are received from land, which land is situated in India and which land is used for agriculture purpose. मतलब कोई भी ऐसी जमीन जो इंडिया में आई हुई है, जो इंडिया में है और जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए मतलब खेती के पर्पस के लिए यूज की जाती है, उस जमीन पर हमें कोई भी रेंट मतलब किराया मिलता है या रेवेन्यू मतलब कोई इनकम मिल रही है, तो वो रेंट और रेवेन्यू हमारे लिए एग्रीकल्चर इनकम है. दूसरा, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड. Number 1, income must be derived by agriculture cultivation. Number 2, income must be derived from processing of agriculture produce. Number 3, income must be derived by sale of agri produce by cultivator or by receiver or rent in kind. इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी जमीन पर से हमें इनकम मिलनी चाहिए जो इनकम, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इनकम मस्ट बी डिराइव्ड बाय एग्रीकल्चर कल्टीवेशन. मतलब कल्टीवेशन का मतलब होता है कोई भी खेती करना, मतलब किसी चीज को उगाना. ओके, तो हमें अगर हम कोई चीज को कल्टीवेट कर रहे हैं, उगा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि अगर उस प्रोसेस में से हमको वो पैसा मिल रहा है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम. सेकेंड पॉइंट इज इनकम मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. मतलब एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है उसकी जो प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस में से भी अगर हमें कोई इनकम मिल रही है तो भी उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे. प्रोसेस मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी चीज हम जो जिसकी हम खेती कर रहे हैं और उसके बाद उसकी प्रोसेस भी कर रहे हैं, जैसे कि हम रुई बनाते हैं, तो रुई डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होती है, राइट. हमें उसको उसके जो उसके पेड़ है उसको हमें पहले उगाना पड़ता है, उसके बाद उसकी रुई को अलग करना पड़ता है. तो जो ये प्रोसेस है उसपे से हमको जो इनकम मिलती है, उस प्रोसेस की इनकम को भी हम एग्रीकल्चर इनकम के अंदर ही गिनेंगे. नंबर 3 इज इनकम मस्ट बी डिराइव्ड बाय सेल ऑफ एग्री प्रोड्यूस बाय कल्टीवेटर और बाय रिसीवर और रेंट इन काइंड. मतलब हम जो खेती कर रहे हैं उसमें से हमको जो प्रोडक्शन मिला है, उस प्रोडक्शन को हम अगर सेल करते हैं, वो सेल कौन कर सकता है, कल्टीवेटर कर सकता है, या कोई जिसने रेंट पे जमीन लेके खेती की थी और वो भी अगर सेल कर रहा है तो उसको भी जो इनकम मिल रही है. इन शॉर्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जब हम सेल करते हैं तो उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम के अंदर ही ट्रीट करेंगे. लेकिन ध्यान ये रखना है, देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को किसी ने खरीद लिया और फिर वो बेचता है तो दैट विल नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम. जो उगाता है या फिर जो जिसने किराए पे जमीन लेकर भी उगाया है, मतलब कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उसी के लिए ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का सेल क्या है, टैक्स फ्री है. अदरवाइज that will be treated as non-agriculture income and it will be taxable. Okay. Number 3 is income derived from building or farm house. तो यहाँ पे हमें 5 चीजें ध्यान रखनी है कि किस तरीके की बिल्डिंग की इनकम हमारे लिए एग्रीकल्चर इनकम में के अंदर इंक्लूड होती है. नंबर 1 इज द बिल्डिंग मस्ट बी ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर. मीन्स कल्टीवेटर यानी जो खेती कर रहा है उसको ही वही वो जमीन को यूज करना होना चाहिए, उसी के लोग या उसी को उसने ही ऑक्यूपाई करके रखा है, उसने किसी को किराए पे नहीं दिया है, वो खुद ही रह रहा है या फिर वो खुद ही कुछ काम कर रहा है. नंबर 2 इज मस्ट बी ऑन द लैंड और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड. मतलब ऐसा, ये हम जो बात कर रहे हैं वो बिल्डिंग या हाउस की कर रहे हैं, राइट. तो ये जो बिल्डिंग या हाउस है ये या तो उस जमीन के ऊपर ही होना चाहिए या तो उस जमीन के आसपास के एरिया में होना चाहिए. विसिनिटी मतलब आसपास का एरिया. हमारा जो जमीन है, मतलब हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि फार्म हाउस, किसी के पास फार्म हाउस होता है तो वो तो या तो वो उसके अपने खेत पे होता है या तो उसके खेत के तुरंत पास में होता है या आसपास में होता है. तो उसी तरीके की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. Number 3 is the cultivator must require it as a dwelling house, storehouse or other outbuilding. मतलब जिसकी वो जमीन है या जो वो खेती कर रहा है, वो इस घर को या इस बिल्डिंग को फार्म हाउस की तरह, स्टोर हाउस की तरह या फिर एक अलग से एक घर की तरह
रख रहा है, मतलब वो यूटिलाइज कर रहा है शॉर्ट में। नंबर 4 इज द लैंड मस्ट बी असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू और लोकल रेट्स, मतलब इस जमीन की असेसमेंट यानी आकारणी होनी चाहिए, या तो उसके कोई टैक्सेस, लोकल टैक्सेस उस जमीन पे कैलकुलेट होने चाहिए। पंचायत या नगर पालिका, म्यूनिसिपालिटी, वो जो लोकल टैक्सेस वसूल करती है ना, तो वो उस घर के लोकल टैक्सेस हमको पे करने पड़ेंगे। And last is, if it is not assessed to land revenue or local rates, then it must be situated outside urban areas. अगर उसके ऊपर कोई लोकल टैक्सेस नहीं दिए जा रहे हैं तो वो अर्बन एरिया से थोड़ा दूर होनी चाहिए। ओके, दूर यानी अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर, मिनिमम 8 किलोमीटर से दूर होनी चाहिए। जो मेन सिटी एरिया या अर्बन एरिया है वहां से वो अगर 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं कि ये फार्म हाउस है या ऐसी बिल्डिंग है जो सिर्फ खेती के लिए यूज होती है। यहाँ पे ऐसे इस तरीके के घर पे वो खेती जो कर रहा है वो खुद भी रह सकता है, उसको वेयर हाउस या स्टोर रूम उस तरीके के लिए भी वो ट्रीट कर सकता है या यूज कर सकता है। अपने किसी मजदूरों को रहने के लिए या रखने के लिए भी वो यूज कर सकता है। मतलब अल्टीमेटली उसको खुद इस मकान को या इस बिल्डिंग को यूज करना पड़ेगा, तो ही उस मकान में से जो इनकम मिलती है उस इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड कर सकते हैं। सो आई होप कि ये चारों इनकम आपकी माइंड में क्लियर हो गई होगी। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।